السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام و دیگر سامعین و سامعات، آج پوری دنیا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے پوری دنیا؟ کورونا وائرس۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے والد محترم جناب شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے کچھ کورونا وائرس کے سلسلے میں انٹرویو ہوں۔ امید کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ابو جان؟ الحمدللہ علی کل حال، نحمد اللہ و نشکر ربنا الرحمن الرحیم۔ کیا میں آپ سے چند سوال کر سکتا ہوں کورونا وائرس کے سلسلے میں؟ میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ میرا بچہ مجھے سے سوال کرے اور میں اس کا ٹھیک جواب دے لے جاؤں۔ تو میں کر سکتا ہوں؟ بولیے، بالکل۔ ابو جان، اس وقت کورونا وائرس سے پوری دنیا گھبراہٹ اور پریشانی میں ہے، تو اس موقع پر آپ ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیزم لخت جگر عبداللہ حمود نے اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کر اور لوگوں کی پریشانیوں کو محسوس کر کے یہ بزم رچائی ہے، جس کا عنوان ہے کورونا وائرس اور ایک اہم انٹرویو۔ اور انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے عجیب گھبراہٹ اور پریشانی میں ہے۔ تو اس وقت ہم آپ لوگوں کو ان کے ذریعہ سے کیا وصیت، کیا نصیحت کریں اور آپ لوگوں سے کیا گزارش کریں؟ مسلمانان کرام، پہلی بات تو ہمارا تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور تقدیر کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کورونا وائرس یا دیگر بیماریاں یا دیگر پریشانیاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، مشیت اللہ کی ہوگی، اسی کو ہوگی، ورنہ جس کے بارے میں نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر دو تین چند اہم اور بنیادی نصیحت میں خاص طور پر بچوں کو اور بڑوں کو کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں نصیحت کے بعد، کہ اللہ تعالی نے اپنے کچھ بندوں کے لیے بطور عذاب کورونا وائرس یا کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی خطرناک بیماری پیدا کرتا ہے، اور اپنے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ کورونا وائرس یا اس طرح کی کوئی بیماری اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے عذاب سے بچائے۔ تو نافرمان بندوں کے لیے کورونا وائرس جیسے خطرناک مہلک بیماری یہ عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے
ईमान वालों के लिए, नेक लोगों के लिए ये रहमत, मग़फ़िरत और रफ़े दर्जात में बुलंदी का सबब है। चुनाचे जो नेक लोग हैं हर हाल में सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला से गिरफ्तारी करते हैं, दुआएं करते हैं, दूसरों से इबरतें हासिल करते हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं, बदकिरदार, बदअमल, काफिर और मुशरिक हैं, वो ऐसे मौके पर अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शिर्क करते हैं, वाहवाला करते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। तो मोमिन के लिए ये रहमत है, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल अकरम ने फरमाया कि किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके जरिए अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटाता है। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को हमारे लिए बाइस इबरत बना दे और गुनाहों के मिटने का जरिया बनाए और हमारे दर्जात की बुलंदी का सामान और जरिया बनाए और हमें हर हाल में अल्लाह ताला साबिर और शाकिर बनाए। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का हर हुक्म मेरे बारे में चलेगा, मैं अल्लाह के हुक्म को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से इस घबराहट और इस बीमारी के दूर करने की दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पर जो मैं नसीहत करना चाहता हूँ इस मौके पर, कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी और मुहलिक और घातक रोग है। ये क्यों आया? आपका जवाब भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो पैदा किया, सही बात है। लेकिन अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और एक पत्थर, एक रोड़ा था और आपका पैर उस रोड़े से टकराया और नाखून निकल गया, तो आप रास्ते को गाली देंगे, आप उस पत्थर को गाली देंगे, या सोचेंगे कि आखिर ये ठोकर लगी क्यों? चुनाचे कोरोना वायरस को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा अल्लाह जो मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, आपको पैदा किया, आपके अब्बू को पैदा किया, बहुत कुछ नेमतें दिया, आखिर अल्लाह ताला ने आज हमारे लिए ये बतौर इबरत, अल्लाह ताला अपने आजमाता है, गुनहगार बंदों को दुनिया में भी उनके गुनाहों की सजा देता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो आज मुसलमानों की अक्सरियत, मर्दो ज़न की अक्सरियत यकीनन अल्लाह ताला से गाफिल है, अल्लाह ताला से लापरवाह है, गुनाह करने में दरेग नहीं करते, सिर्फ छोटे गुनाह नहीं बल्कि बड़े बड़े गुनाह, अल्लाह का भी हक मारते हैं और अल्लाह के बंदों की भी हक तलफी करते हैं। आज हमारे घरों के अंदर, समाज और मुआशरे के अंदर जुल्म आम है, बेहयाई की चीजें आम हैं, बेपर्दगी की चीजें आम हैं, जनाकारी और बदकारी की चीजें आम हैं और लोगों के हुकूक को बाकायदा धड़ल्ले के साथ, सीनाजोरी के साथ पामाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला हमसे नाराज है और उसी नाराजगी का एक हल्का सा झलक कोरोना वायरस है कि जिससे बड़ी बड़ी सुपरहिट ताकतें, जिन्हें बहुत सारे मामलात में वीटो पावर हासिल है, आज वो सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद है। उनके आज सबसे ज्यादा जाने गई हैं, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, माली हिलाकत सबसे, जानी और माली हिलाकत सबसे ज्यादा हुई है। चुनाचे इस मौके पर मैं नसीहत करूंगा कि आंखें खोलो, आंखें खोलो और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें और आपको पैदा किया है उसकी तरफ पलटो। इस सवाल के जवाब में तीसरी और आखिरी नसीहत जो मैं करना चाहता हूं कि यकीनन अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह का ये वादा है, जब कोई बंदा हमारी नाफरमानी करके हमसे दूर चला जाता है, लेकिन जब वो तौबा करके हमारे पास तौबा करके लौटता है तो हम उसे कबूल कर लेते हैं। कोई बंदा
अगर हमारी तरफ चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ, एक बारिश आता तो मैं 2 बारिश। चुनाचे जब वो बंदा मांगता है तो मैं उससे दुआ देता हूँ, उसे कबूल करता हूँ। जब पनाह मांगता है तो पनाह। चुनाचे हम अल्लाह ताला की तरफ लपकें, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ें और अल्लाह ताला ही से पुर उम्मीद होकर के इस परेशानी और इस संकट और इस बीमारी के दूर करने की दुआ करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला मेरे अब्बू जान को तवील उम्र दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं माफ़ी चाहता हूँ अब्बू जान, आपसे मैं दूसरी सवाल भी कर सकता हूँ? दूसरा सवाल, क्या सवाल है, कीजिए। अब्बू जान, कोरोना वायरस की अहम निशानी क्या है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बड़ा भारी सवाल है भाई। कोरोना वायरस की अहम पहचान और निशानियां क्या हैं? अल्लाह ताला सबको कोरोना वायरस से बचाए, सारे मुसलमानों को महफूज रखे, इसके शर से अल्लाह ताला बचाए रखे, और यकीन अल्लाह ताला ही बचाएगा। मैं तो भाई कोई डॉक्टर हूं नहीं। डॉक्टरी पढ़ने के लिए हमारे मुहसिनों ने कोशिश की थी, लेकिन जामिया सल्फिया बनारस से फरागत के बाद फौरन शादी कर दी। तो बहरहाल अब शादी, बीवी का खर्चा और फिर तालीम का खर्चा बहरहाल किस्मत में नहीं था। डॉक्टरी तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उससे अच्छी तालीम अल्लाह ताला ने हमें दी है। लेकिन अखबारों की मुताबात करने के बाद और बहुत सारी तकरीरें सुनने के बाद और व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारे डॉक्टरों के मशवरे सुनने के बाद और कुछ लोगों के साथ बैठ करके इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने के बाद चंद चीज़ें हमें मालूम होती हैं कि कोरोना वायरस की अहम मोटी मोटी निशानियां क्या हैं। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है तेज बुखार का आ जाना, तेज बुखार। दूसरी निशानी है हलक में खुजलाहट, कलबलाहट। तीसरी निशानी है सांस लेने में परेशानी, जैसे दमा का मरीज होता है, सांस लेने में परेशानी। और इसी तरीके से एक निशानी और है कि जिस आदमी को अल्लाह महफूज रखे कोरोना रोग लग जाता है, वो अगर कोई चीज सूंघे तो उसकी खुशबू और बदबू महसूस नहीं कर पाता, या कोई चीज जबान पर चखे तो ये नहीं महसूस कर पाता है कि वो चीज, उसका जायका कड़वा है या मीठा है या किस तरह है। ये निशानियां डॉक्टरों ने बतलाया है। तेज बुखार, गले में खुजलाहट या हलक में, सांस के लेने में परेशानी, मशक्कत, और जबान पर जब कोई चीजें, और सूखी खांसी। एक खांसी होती है कि उसके साथ बलगम आता है, और दूसरी खांसी खांसता रहता है लेकिन अंदर से कोई बलगम वगैरह नहीं निकलता है। और जबान पर कोई चीज रखे तो उसका कड़वाहट, उसकी मिठास, उसकी लज्जत और चाशनी महसूस ना करें। ये डॉक्टरों ने बतलाया है। चुनाचे अगर कोई भी शख्स इस वक्त अपने अंदर इन बड़ी बड़ी निशानियों को या इनमें से किसी एक निशानी को पाए, तो पहला मशवरा मेरा है कि फौरन वो गर्म पानी में लेमू निचोड़कर उसे पी ले। फौरन गर्म पानी में लेमू निचोड़कर पी ले। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो सऊदी अरब में है, तो उसे ये बात बतलाना मुनासिब होगा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना वायरस की निशानियों में से कोई भी निशानी जाहिर हो, आप फौरन अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल या जाती और खुसूसी और निजी हॉस्पिटल की तरफ फौरन भागें। इकामा ले जाने की जरूरत नहीं, प्रूफ ले जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि आप इकामा कानून के मुखालिफ हैं
मतलब आपके अंदर कोई इकामा नहीं है या आप भागे हुए हैं, तब भी आप फौरन जाएं, आपका फ्री इलाज होगा। तो ये परेशानियां जैसे जाहिर हों, पहली फुर्सत में इस वक्त लेमू अपने घरों में आप रखें और फौरन उसे लेमू गर्म पानी में पिए और फौरन एम्बुलेंस को फोन करें, फौरन आप खुद अपने मोबाइल से करें और डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाएं। और अगर दूसरे मुल्क के लोग हैं तो उन्हें भी यही मशवरा दूंगा, अल्लाह ताला दुनिया के सारे हुकूमतों को अपने पब्लिक के बारे में वही सोच रखने की तौफीक अता फरमाए जो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क बलद तौहीद सऊदी अरबिया करे। तो ये अजीज़म ने हुई चंद मोटी निशानियां, बुखार आ जाता है, गले में खुजलाहट रहती है, हमारे यूपी के भाषा में मामले क्या बोलते हैं, और इसी तरीके से सांस लेने में परेशानी होती है, हाँ, और कोई चीज़ ज़बान में चखने से पता ही नहीं चलता है, और तेज़ बुखार भी होता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। ये चंद मोटी मोटी निशानियाँ डॉक्टरों से इंटरव्यू लेने के बाद या पढ़ने और सुनने के बाद मुझे पता चला है। वो जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अबू जान, मैं अगर नीचे जाता हूँ तो मुझसे कुछ आदमी, मैं आपका मौलाना का लड़का हूँ, कोई आदमी मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आप हमें बतलाएंगे कि हमें इससे बचने, इस कोरोना वायरस से बचने और दूसरों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़म अब्दुल्ला हमूद, ये अल्लाह का शुक्र है कि आप एक इल्मी घराने में पैदा हुए हैं। चुनाचे आपको भी चाहिए कि दीनी इल्म हासिल करने में और दुनियावी नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने में मेहनत करें। अब्बू की वजह से आप पहचाने जाते हो और आपसे लोग मुस्लिम मसाइल भी पूछ लेते हैं, कभी बिना इल्म के दे तो बिना इल्म के कोई मसला न बतलाइए। और अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको, आपके मुसलमानों में यह इज्जत दी है कि लोग आपसे इस्तिफसार करते हैं। आपका जो सवाल है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो इस सिलसिले में पहली तालीम और पहली नसीहत आपको और आपके जरिया आपके सुनने वालों को मैं ये करना चाहता हूं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आप जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन इस्लाम है और दीन खैर ख्वाही का नाम है। एक सहाबी ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की खैर ख्वाही के लिए। अद्दीन और नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अल्लाह के साथ खैर ख्वाही, उसके रसूलों के साथ खैर ख्वाही, और इस तरीके से अल्लाह की किताब के साथ खैर ख्वाही, बादशाह वक्त के साथ खैर ख्वाही और आम मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही। और ये आपका सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। यकीनन इस वक्त हमें खुद कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने की जरूरत है और दूसरों को बचाने की जरूरत है। तो इस सिलसिले में पहली गुजारिश आपसे और आपके माध्यम से सारे लोगों से ये करूंगा कि खुद अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अपने लिए भी, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, क्लास फेलों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए कि अल्लाह बचाए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया की हुकूमतों ने कोरोना वायरस के रोग के फैलाव को रोकने के लिए कुछ कानून बनाया है और वो कानून माहिरीन डॉक्टर, अतिब्बा और समाज से जुड़े हुए होशियार लोगों से मशवरा लेने के बाद बनाया है। और वो कानून जो हुकूमतों ने बनाया, खासतौर पे सऊदी अरबिया ने, दूसरा वो इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है उन लोगों का बनाया हुआ कानून, लेकिन वो इस्लाम के आइन तकादा के मुताबिक है। चुनाचे आपको खास तौर पर, बच्चों को खास तौर पर, मर्दों को खास तौर पर मैं गुजारिश करूँ, जहां भी हैं, जिस मुल्क में भी आप हैं, आप अपने मुल्की बनाए हुए
कोरोना वायरस के मौके पर बनाए गए कानून को मुकम्मल फॉलो करें, चुनाचे कानून की मुखालफत न करें। इस सिलसिले में कानून की मुखालफत करेंगे तो या तो रोगी बन करके घर में आएंगे या रोग दूसरों तक पहुंचाएंगे, और न नुकसान उठाना चाहिए न किसी को नुकसान में डालना चाहिए। और अगर सऊदी अरबिया की पुलिस तो माशाल्लाह बड़ी अमानतदार दियानतदार है, लेकिन आप दूसरे मुल्कों में बात को नहीं मानेंगे तो लाठी पाएंगे, डंडे भी पाएंगे, हाथ पैर। अभी तो कोरोना वायरस ने हाथ पैर टूटेगा। चुनाचे अपने मुल्कों के बनाए इस सिलसिले में अपने मुल्कों के बनाए हुए कानून की पाबंदी की। चुनाचे आप घर से निकले तो दस्ताना पहन ले, मास्क पहन ले, और भीड़ भाड़ की जगहों पर कतअन न जाए, ना भीड़ भाड़ जगहों पर जाए और ना भीड़ भाड़ बढ़ाएं, बिल्कुल नहीं। और घर ही में रहें, क्योंकि ये बीमारी मुतअद्दी बीमारी है, यानी ये बीमारी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक मुंतकिल हो जाती है। एक वायरस है, जरासीम है। तो आप अपने घर ही में रहें और बिना अहम तरीन जरूरत के आप बाहर ना जाएं। सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा। और अगर बाहर जाने की जरूरत बहुत अहम है और हमारे मुल्कों का कानून इजाजत देता है, तब या इजाजत लेने के जो जरिए हैं वो लेकर के निकलें, भीड़ में ना रहें, भीड़ ना बढ़ाएं। अपने और दूसरे आदमी के दरमियान किसी से मुलाकात करनी है तो दूर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दे, मुसाफा बिल्कुल ना मिलाएं, और यह शरीयत के खिलाफ नहीं है। तीसरी चीज, आप अगर मार्केट जा रहे हैं, मॉल वगैरह में, तो बहरहाल अपने हाथ में सैनिटाइज लगा ले। पहली फुर्सत में जो थैलियां लेके चलते हैं वो माशाल्लाह मॉल वगैरह वाले वो उसको स्प्रे मार देते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं। और अपने और जिससे मुलाकात करना है उससे कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर की दूरी पर है, किलोमीटर नहीं, 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर। आप ये ना कहो कि अब्बू तो आप तो मेरे बगल में बैठे, ये बाहर की बात कर रहा हूं। आप ये ना कहे कि अरे नहीं ये तो मेरा दोस्त है, बाहर है, कोई बात नहीं, इसको हो सकता नहीं बेटा, कोरोना वायरस कुछ चीजों में 8 दिन तक रहता है, लकड़ी में, कपड़े में 8 दिन तक रहता है, और लगभग 2 हफ्ते के बाद कोरोना वायरस के आसार जाहिर होते हैं। तो भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, और जो भी खाएं उसे खूब पका कर खाएं, जो भी खाएं वो खूब पका करके खाएं। और जब घर से वापस आए, बाहर से वापस आए, तो आप अपने हाथों को साबुन से धुल लें। तो ये चंद चीजें हैं हिफाजत तौर पर। एक तो घर ही में रहें, घर की सफाई का खास ख्याल रखें, वो तो मैं बाद में इंशाअल्लाह इन्होंने पूछा तो मैं बताऊंगा। भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, भीड़ की जगहों पर जाएं नहीं, हाथ में दस्ताना पहन करके जाएं, मुंह में मास्क लगा के जाएं, और बिना अहम से अहम जरूरत के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, खास तौर पे बड़ी उम्र के लोग और छोटे बच्चे। और ये चंद चीजें हैं, हमें अगर हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाजत के बाद हम भी बचे रहेंगे और दूसरे लोग भी बचे रहेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सारे कानून सारे मुल्क लगाते बेचारे लोगों की जान और माल की हिफाजत के खातिर लोग इसको फॉलो नहीं करते, ये गलत बात है। अबू जान में लोग सवाल पूछते हैं कि कोरोना वायरस के मरीज का इलाज क्या है? पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोना वायरस के मरीज का इलाज क्या है, तो आप कहते हो भाई अभी मैं छोटा हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने मेरे ज़हन और दिमाग को खोला है, मैं पता लगाऊंगा, और पता लग गया तो मैं ज़रूर बतलाऊंगा। और यकीनन इस मौके पर आमतौर पर मैं सारी बीमारियों के बारे में कहता हूं कि हर आदमी को अपने घर में इतनी जानकारी रखनी चाहिए जिससे जानकारी के जरिए कोई भी परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो उसका फर्स्ट एड पहली फुर्सत में कुछ इलाज कर सके। जरूरी है कुछ इलाज का, और जानना चाहिए, खासतौर पे घर को औरतों को जाननी चाहिए। बच्चा अगर मान लिया जल गया तो फौरन क्या करे,
कुछ लोग कहते हैं चूना लगा ले, सही बात है कि उसमें शहद लगा दे, वगैरह वगैरह वगैरह। या बच्चा मान लिया बेहोश हो गया तो क्या करे, उसके दिल को दबाए, मुंह में फूके, वगैरह वगैरह। तो ये कोरोना वायरस के मरीज का इलाज क्या है? अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत सारे डॉक्टरों की तहरीर पढ़ने के बाद और मशवरा लेने के बाद और सऊदी अरबिया की जानिब से जो खबरें आती हैं, उन खबरों को देखने के बाद मैं चंद चीज़ें मुफीद बतलाना चाहता हूँ। कुछ इलाज ऐसे हैं जो उन बीमारों के लिए है, अल्लाह महफूज है, जिनको कोरोना वायरस लग गया है, और कुछ हिफाजती इक़दामात हैं और इलाज हैं। चुनाचे तजर्बे की रोशनी में माहिर अतिब्बा ने बात कही है कि कोरोना वायरस का कोई मरीज है तो सबसे पहले उसे सूखी खांसी के लिए जो दवाएं हैं वो दी जाए। दूसरी चीज, विटामिन सी की गोली दी जाए, कम से कम 1000 mg विटामिन सी, क्योंकि जिस बदन में विटामिन सी की कमी होती है उस पर कोरोना वायरस ज्यादा असर कर जाता है अल्लाह की इजाजत के बाद। तो खांसी की दवा डॉक्टरों से लिखा ले, और विटामिन सी की दवा जो 1000 mg की हो। इसी तरह विटामिन एच और विटामिन ई की दवा, विटामिन ई और विटामिन एच की दवा, ये 2 विटामिन के टेबलेट दिए जाए। तीसरा इलाज ये है कि दिन में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज को कम से कम रोजाना 15 मिनट से 20 मिनट तक धूप में बिठाया जाए। कम से कम 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज को कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इतना उसको धूप में बिठाया जाए। ग़िज़ा में उसे अंडे का नाश्ता कराया जाए। आप समझ लीजिए, अंडे में विटामिन सी भी ज्यादा गर्म भी होता है। अंडा दिया जाए, 2 अंडा, 3 अंडा, 1.5 अंडा, ये दिया जाए अगर कोरोना वायरस से मुतासिर आदमी है। और इसी तरीके से 5वीं चीज, कम से कम ऐसे मरीज को 7 से 8 घंटा सोने दिया जाए। अब आप कहेंगे तो काम कैसे हो गए, तो मरीज है काम। वैसे आम तौर पर कम से कम 7 घंटा की नींद लेनी चाहिए, और अगर कोई शख्स ईशा के बाद सो जाए और फजर तक तो इंशाअल्लाह 8 घंटे की नींद हो जाएगी, बच्चा हो या औरतें। कम से कम सारे लोगों को, जो बचे हुए वो भी अल्लाह सबको बचाए, 7 घंटा या 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और अगर कोरोना वायरस का मरीज है तो उसे नींद की ज्यादा जरूरत होती है। इसी तरीके से 6ठा इलाज ये है, वैसे आम लोगों के लिए भी इलाज है, कम से कम प्रतिदिन डेली 1.5 लीटर या 2 लीटर गुनगुना पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं, बरादे का पानी नहीं, बर्फ का पानी नहीं, कम से कम 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पीना चाहिए, पिलाना चाहिए उसको। और इस सिलसिले में बात लंबी होती जा रही, मैं तो सबको ये वसीयत और नसीहत करूंगा, एक तो पानी में ग़िज़ा है और जिस्म को पानी की जरूरत है, और डेली रोजाना कम से कम निहार मुंह 1 लीटर गुनगुना पानी पीना चाहिए। और अगर कोई दिन में 3 लीटर 4 लीटर गुनगुना पानी पी ले जाए तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल और शुगर और मोटापा सब खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज है, अल्लाह महफूज रखे, तो कम से कम उसे 2 लीटर गुनगुना नीम गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। और शहद, अगर वो शुगर का मरीज नहीं है तो उसे डेली 2 चम्मच 3 चम्मच पूरे दिन में 2 चम्मच ओरिजिनल शहद खिलाना चाहिए। इसी तरीके से जो भी उस कोरोना वायरस के मरीज को खाना दिया जाए, जो भी दिया जाए, वो ठंडा खाना ना हो, गरम ताज़ा खाना हो, गरम और ताज़ा खाना हो। फ्रिज में रखा हुआ खाना ना हो या 2 दिन का बना हुआ खाना ना हो, गरम और ताज़ा खाना हो।
یہ تو علاج ہے ان بیماروں کے لیے جو کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں. کچھ علاج سارے لوگوں کے لیے ہے جو کورونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی بنائی ہے. دوا کوئی جان گیا کوئی نہیں جان پایا، لیکن دواؤں کے کھانے کے بعد دواؤں پر اعتماد و بھروسہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک سادن ہے شفا دینے یا نہ دینے کا کے بارے میں اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا. تو عام لوگوں کے لیے اللہ سب کو محفوظ رکھے. اس سلسلے میں ڈاکٹروں کا جو مشورہ ہے تجربات کی روشنی میں بات کہنا صحیح بھی ہے کہ لیمو کا استعمال زیادہ ہو. لیمو کا گھروں میں بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو لیمو کا استعمال زیادہ ہو. کھٹی چیز ہے اور لیمون میں وٹامن سی زیادہ ہوتی ہے. اگر ہرا والا لیمو ہے تو اور زیادہ مفید ہے. ہرا والا لیمو یہ اگر ہے تو یہ زیادہ مفید ہے، ورنہ جو پیلے کلر کا لیمو آتا ہے وہ بھی آپ دال میں ڈال کر کے کھا لیجئے، آپ روٹی میں لگا کے کھا لیجئے، آپ نچوڑ کے پی لیجئے. لیمو کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. اور لیمو کا نام سنتے ہی شاید آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا. اسی طرح ایک پھل ہے جس کو ایویکاڈو کہتے ہیں، ایویکاڈو، اور یہاں ابوکادو کہتے ہیں. وہ ایسے شریفے کی طرح ہوتا ہے، گرین گرین، وہ بڑا مفید ہے اس سلسلے میں. اسی طریقے سے کھانے میں لہسن زیادہ استعمال کیا جائے اور ہلدی بھی زیادہ استعمال کیا جائے. کھانے میں لہسن اور ہلدی کا استعمال زیادہ ہو. اسی طریقے سے آم کھایا جائے، آم کچا یا پکا. اسی طریقے سے استعمال جس کو ہمارے یہاں آولا بولتے ہیں، آولا کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مقوی غذائیں، کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، چلغودا وغیرہ وغیرہ، کم سے کم دن بھر میں مٹھی بھر لے لیں. اسے مٹھی بھر جتنا آپ کے مٹھی میں آئے اور اسے کھائیں، لیکن اسے خوب پیس کر دانت سے ایک دم پیس کر تب اسے کھائیں. اور اگر ہو سکے تو ہریرا بنا کر کے کھا لیں. یہ بڑی مفید چیز ہے، طاقتور چیز ہے. کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، چلغودا وغیرہ، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کریں. اسی طریقے سے پتیوں والی ساگ زیادہ کھائیں. عام طور پر سبزی بھی زیادہ کھائیں، سبزی. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج چائنیز ہے، یہ برگر ہے، یہ سینڈوچ ہے، یہ بڑے بوڑھے تو سبزی پسند کرتے ہیں. آج کے زمانے میں سبزی بچے پسند ہی نہیں کرتے، جبکہ ہر گھر میں ڈیلی سبزی کا استعمال ہونا چاہیے. لوکی ہے، بھنڈی ہے، کریلا ہے اور بہت ساری سبزیاں ہیں. پتے والی سبزیاں زیادہ کھائیں اور سبزیاں پکانے میں ایک دم بالکل کالا نہ کر دیں، ادھ کچرا ہو. ادھ کچرا جیسے چورائی ہے، کلفا ہے، پالک ہے، کرموا ہے، ہاں، یا اور جو ساگ آپ کے ہاں ملتے ہیں، ساگ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. پتیوں والی ساگ بنا کے کھائیں یا پہترا بنا کر کے کھائیں یا دال بنا کر کے کھائیں. ایک گھاس ہے جس کو سعودی عرب میں جرجیر کہتے ہیں اور اپنے انڈیا والے واٹر گریس کہتے ہیں. اس کی شکل لاہی کی طرح، لاہی کے پتے، رائی کے پتے کی طرح ہو. اس میں سب سے زیادہ وٹامن سی ہے، چنانچہ جرجیر کھائیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری غذائیں ہیں، تو ان غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. البتہ گوشت اور مچھلی یا مرغی وغیرہ کھائیں، یہ برڈ فلو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں خوب زیادہ پکا کر کے کھائیں. خوب پک جائے، خوب زبردست پک جائے تب کھائیں. تو یہ چند ان لوگوں کے لیے علاج ہیں جو علاج مریضوں کے لیے، اور کچھ احتیاطی علاج ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ابو جان اب ایک چیز بھول گئے اس میں بولنا، کلونجی بھی آپ گھر میں پیتے ہیں اور زیتون تیل بھی پیتے ہیں. جزاک اللہ احسن جزا. عزیزم کا ایک اٹیک میرے اوپر کہ شاید میں وقت دیکھ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دو چیز بتلانا بھول گئے. اور وہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں کلونجی بھی زیادہ کھاتے ہیں اور زیتون کا تیل بھی
इस्तेमाल करते हैं। यकीनन ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं और ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज है हर मर्ज के लिए। एक तो इसमें बरकत है, दोनों चीज़ों में शिफा भी है, ताकत भी है, विटामिन भी है। जैसे खाने पीने में मैं छुहारा नहीं बताया, वो भी खाना चाहिए, खुजो भी खाना चाहिए। मेरे भाइयों साथियों, हमारे घरों में कलौंजी होना चाहिए, जिसको अरबी में हब्बतुस सौदा कहा जाता है और बहुत सारी जगहों पर कलवंजी या मंगरैल कहा जाता है, काला मंगरैल हर घर में होना चाहिए। और हब्बतुस सौदा कलौंजी का इस्तेमाल हर खाने में होना चाहिए। रोटी में उसको डाल दें, चावल में डाल दें, दाल में डाल दें, सब्जी में डाल दें या कच्चे खाएं, मतलब वो काला काला होता, छोटा छोटा। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा कलौंजी हर मर्ज की दवा है। दोनों से, एक तो अल्लाह के रसूल ने बतलाया इसमें बरकत है और अल्लाह ताला जानता है कि इसके अंदर क्या खूबी है। हम अच्छी नीयत से नबी की पैरवी करते हुए कलौंजी इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हमें फायदा होगा, यकीन कर ले हमें फायदा होगा। चुनाचे काली चाय दिन में सब लोग 3 बार कम से कम पिए, काली चाय, और उसमें 2 लौंग डाल दें और इतना कलौंजी डाल दें, और कलौंजी और लौंग, और अगर हो सकता है तो अजवाइन भी थोड़ा डाल दें, अजवाइन, और उसकी चाय ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया, अल्लाह महफूज है, तो जैतून का तेल गले में और नाक में लगाएं, जैतून का तेल गले में और नाक में लगाएं, ये बहुत जरूरी, या जैतून का तेल पिए। इसी तरीके से जब हम अपने घरों को सैनिटाइज से या साफ करने वाली चीजों को खूब साफ रखें, 2 बार कम से कम, और हाथ को हर 15 मिनट के बाद कम से कम 40 सेकंड साबुन से धुलाएं। लाइफ बॉय साबुन हो, डिटॉल हो, कोई भी साबुन हो, कम से कम 40 सेकंड खूब अच्छे तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, और इस तरह, ये नाखून वगैरह इस तरीके से कम 40 सेकंड धुलाएं। तो कलौंजी और जैतून का तेल ये तिब्बे नबवी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत दी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून के तेल में फरमाया कि इसका सालन खाओ और इसकी मालिश करो। बल्कि अगर किसी बच्चे या बच्ची को नक्सीर बार बार फूटता है, बांस से, जिसको कहते हैं बांसा फूटना, तो जैतून का तेल हल्का नाक में डाल दे, हल्का नाक में, सुबह में डाल दे, शाम में, इंशाल्लाह नक्सीर जो बांसा फूटने वाली बीमारी है तो दूर। तो कलौंजी की चाय पीजिए, रोटी में कलौंजी इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरीके से जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए और उसे पीजिए या खानों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ ये बात मालूम रहना चाहिए कि जैतून के तेल को अगर गर्म कर देंगे तो उसके अंदर जो असर है वो खत्म हो जाएगा, उसको वैसे ही खाया पिया और इस्तेमाल किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अबू जहल, खास तौर पर हमें इस वक्त क्या इबादत करनी चाहिए? अजीजम का सवाल है कि इस परेशानी के आलम में अल्लाह ताला से इस परेशानी के भगाने, दूर करने की अपील या भीख मांगते हुए हमें क्या क्या इबादतें करनी चाहिए। और बड़ा उम्दा सवाल है। पहली बात तो कुछ इबादतें हैं जो हर मुसलमान पर दिन और रात में या किसी महीने में किसी मौके पर फर्ज और वाजिब है ना। तो इस सिलसिले में मैं पहला मशवरा दूंगा जो बड़ा प्यारा, सबसे पहले अपने हर छोटे और बड़े गुनाह से सच्ची तौबा करना चाहिए, क्योंकि जब बंदा अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह के करीबी हो जाता है, और जो बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है अल्लाह की रहमत और मेहरबानी और अल्लाह की हिफाजत पाता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज वो इबादतें जो हमारे ऊपर फर्ज और वाजिब है, पूरी होशियारी के साथ उन इबादतों के सारी शर्तों के साथ, वक्तों के साथ, अरकान वाजिबात के साथ वक्त पर अदा करना चाहिए। जैसे नमाज की पाबंदी, ये नहीं कि अम्मी जगाती रहे, सोते रहो, शौहर बीवी को जगाती रहे, शौहर सोता रहा है। और इस मौके पर तो खास तौर पर कि सारी मस्जिदें बंद हो गई, हमें सोचना चाहिए, हमारे अल्लाह ताला के तरफ से आजमाइश है। तो फर्ज नमाजों की पाबंदी ये बहुत ही जरूरी है।
فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر بندی ہے، کاروبار بند ہے. ہم اپنے گھروں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر کر، ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ عبادتیں کر کے اللہ کو خوش کریں جن عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. تیسری چیز، اس پریشانی اور دیگر پریشانی کے دور کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، مکمل یقین کر کے دعا کریں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے مانگتا نہیں میں اس سے غضبناک ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا ہاتھ خالی لوٹانے سے شرماتا ہوں اور لاپرواہ دل سے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو تیسری چیز، زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں. چوتھی چیز، جب ہم گھر سے باہر جائیں ہمیشہ، اس موقع پر بھی ہمیشہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو اسے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، اسے اللہ کی حفاظت مل جائے گی. بلکہ شیطان بھی کہتا ہے، جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی اپنے ساتھیوں سے اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی حفاظت کرنے والا، کوئی اس سے ٹکرا نہیں سکتا. تو یہ، اور جب بازار یا گھر سے باہر آئے تو گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا ضرور پڑھ لیں. بازار میں جب جائیں تو بازار میں جانے کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھ لیں، جس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے ساتھ کوئی دعا ہے وہ دعا ضرور پڑھ لیں. اسی طریقے سے سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ دعا ضرور پڑھیں. سوتے وقت کی، اٹھنے بیٹھنے کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں پڑھیں. علاج میں ایک چیز اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ اگر کورونا وائرس یا نہیں ہے، چھینک آئے تو دستی یا رومال سے چھینک منہ پہ رکھ لیں اور فوراً اس کو جا کر کے یا تو پھینکنے والی چیزیں تو پھینک دیں یا اسے دھل لیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. آپ نے ہم سے سوال کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے کچھ دعائیں بتا دیں جو ہمیں پڑھنا چاہیے. بولیے. پہلی دعا ہے، میں اپنے بھائیوں یا انکلوں سے عرض کرتا ہوں، اللہم عافنی فی بطنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. ہاں میں زور سے پڑھ دوں، ہو سکتا ہے اللہ کثرت سے پڑھنا چاہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. صبح شام بھی پڑھنا چاہو، کثرت سے پڑھنا. تھوڑا زور سے بولو. ہاں دوسری دعا. اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. ہاں یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے میرے بھائی. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہاں اور بسم اللہ الذی، ہاں صبح شام یعنی عصر کے بعد اور فجر کے بعد ایک دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ. اور صبح شام کی دعا اگر آپ پڑھتے ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو پڑھیے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 مرتبہ. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 3 مرتبہ. اور قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ہاں مطلب یہ ہے مختصر ٹائم کہ عبادتوں میں چاک چوبند اور نفلوں کی زیادہ ادائیگی. نفل قرآن کی تلاوت ہے، صدقات و خیرات ہے، نفلی نمازیں ہیں، غریبوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر اس موقع پر صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور کیا کہتے ہیں خاص طور پر اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام، یا کوئی بھی دعا پڑھتے رہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھا ہے، اللہ کی یاد سے تر رکھا ہے. تو یہ سب بہترین چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیلی کرنا چاہیے، اور بطور مسلمان تو ہمیں کرنا ہی چاہیے. ابو جان میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کی اس وقت کیا عمومی نصیحت ہے؟ عزیزم میں تو خود نصیحت کا محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کی صحیح نصیحتوں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بطور فائدہ نصیحت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بال بچوں کو ہدایت دے، رشتہ داروں کو ہدایت دے، سارے مسلمانوں، اور ہمارے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے. بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں. ایک تو تقدیر پر ایمان، جو میں پہلے بتا چکا. اسباب کو استعمال کریں گے، جن اسباب کا استعمال کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب کے استعمال کرتے وقت اسباب ہی پر بھروسہ نہیں، بلکہ اول و آخر توکل اور اعتماد و بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے گا تبھی یہ کام بنے گا، یہ بیماری دور ہوگی، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بیماری نہیں دور ہوگی. تیسری تو میں پہلے کہہ چکا ہوں توبہ، استغفار وغیرہ. اللہ تعالیٰ استغفار، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بلاؤں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے استغفار سے بہتر کوئی علاج نہیں پایا. استغفار، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. جب تک لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. استغفار میں پہلے گناہوں سے توبہ، فرائض کی پابندی، اور ہمیشہ ہمارے رسول کثرت سے درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے. اور وقت زیادہ ہوگا، ایک آخری وصیت ہی نہیں بلکہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے اچھے برے سب پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے غربت و فقر فاقہ. لہذا میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمیں خود غرض نہیں بننا چاہیے، ہمیں مطلب پرست نہیں بننا چاہیے، ہمیں دنیا دار نہیں بننا چاہیے. آج سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کرونا وائرس کے موقع پر ڈاکٹروں کا سیزن چل رہا ہے. جہاں 10 روپے کا سامان دوا تھی 20 روپے لے رہے ہیں. ایسی ڈاکٹری پر لعنت ہو. ایسے عذاب اور پریشانی کے موقع پر مریض کا خون ڈاکٹر چوسے، ایسے ڈاکٹر پر لعنت ہو، اور یقیناً ان کے کمائی میں برکت نہیں ہوگی. مہنگائی کو بڑھانے کا سبب ہم اور آپ ہیں. ایک تو بیچاروں کے پاس کمائی نہیں، کرفیو نافذ ہے، 2 روپے کا سامان جو اوریجنل ہے 3 کے بجائے 6 میں بک رہا ہے. یہ موقع کو غنیمت سمجھنا ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، ملکوں کے قانون کے خلاف ہے. آپ جس دھرم کے بھی ماننے والے اس دھرم کے خلاف ہے. تیسری بات، ہمارا اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت کیا تعلیم دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. کبھی ایسا نہ ہو میرے بھائیو، چاہے ہمارا پڑوسی ہمارا دشمن ہو یا دوست ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کر کے سوئیں اور ہمارا پڑوسی ہماری کھیتوں میں مزدوری کرنے والا بھوکے سوئے. مدد کرو، یہ نہ ڈرو کہ ہم کسی کو دے دیں گے کھانا پانی وغیرہ تو ہمارے گھر سے کھانا کم ہو. نہ اچھی نیت سے مدد کے طور پر آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ اخلاص سے دیا ہوا ایک دانہ، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر ہے.
लिहाजा हम इंसानों को, खास तौर पर मुसलमानों को चाहिए कि कोई भी, जितनी भी ताकत हो, कोई भूखा बीमार न रह जाए, कोई भूखा गरीब भूखे न सोने पाए, कोई प्यासा बगैर पानी के न रहे। हर तरह से मौका मिला है खिदमत खल्क की, इंसानियत की खिदमत करने की, खिदमत खल्क करने की। और ऐसे मौके पर एक और निवेदन और गुजारिश हम करना चाहेंगे, वसीयत करेंगे अपने मुल्कों के पुलिसों और सरकारी महकमों से कि आज कितनी परेशानी है खुद आपके लिए, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, समाज के लिए कितनी परेशानी है। चुनाचे समाज के लोग पुलिस का हेल्प करें, शासन का सहयोग करें। और शासन से भी एक निवेदन मैं करूंगा कि ये आपकी पब्लिक है, सब पढ़े लिखे नहीं, मुख्तलिफ जन, उन पर लाठियां ऐसी न बरसाएं कि उनका कोरोना से बड़ा कोरोना हो जाए, अत्याचार जुल्म और बर्दाश्त न हो। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की हर संकट और हर परेशानी से मामून और महफूज रखे और अपने फैसले पर सब्र करने वाला बंदा बनाए और अपनी हर नेमत पर शुक्र करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह हम सबको अपना मुहताज बनाए, अपने किसी बंदे का मुहताज ना बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले सवाल पे दुआ किया था अपने अब्बू जान के लिए, अल्लाह ताला मेरे अब्बू जान को तवील उम्र अता फरमाए मेरे दादा की तरह। और मैं गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो शेयर बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि ये वीडियो सब इंसान के लिए मुफीद है, पूरी दुनिया के लिए मुफीद है, जो भी हो, मुसलमान हो या काफिर हो, सब के लिए मुफीद है। और शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सलाम। जब भी किसी के लिए दुआ करें तो आप ये कहें कि अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ नेकियों की तौफीक देते हुए लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप अजीज़ अब्दुल्ला अहमद, जो आप सबब बने इस सारी बातों के सुनने के। और अगर आप पहले 2-3 दिन पहले मुझे बता देते कि मैं इस तरीके के सवालात करूँगा तो मैं कुछ और तैयारी कर लेता। बहरहाल जो भी बातें आई हैं, उम्मीद की इसमें खैर और भलाई होगी, मुफीद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरीके से एक दूसरे की खैर ख्वाही करने और दूसरों की खैर ख्वाही कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। शुक्र।